बेटी पढ़ाओ जो मेन स्टेट अवार्ड में بوڑ پروف اکسے لکھت ٹائپس پہ 36 کنٹینیو 6 سر اپنا نام بتائیے پہلے. میرا نام مہراج آفاق ہے. میرے گروپ کا نام جموں کشمیر کلچر سوسائٹی ہے. ہم منسٹر آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ گورنمنٹ آف انڈیا سے منسلک ہے. کتنے ٹائم سے؟ میری پہلی رجسٹریشن جو آپ نے ابھی دیکھی، جو میں نے آپ کو رجسٹریشن دکھائی، یہ 1986 میں ہوئی ہے. آج 34 سال ہو گئے میری رجسٹریشن کو. ہر 3 سال کے بعد یہ ہمارا نیا آڈیشن کرتے ہیں اور اس میں ہم سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم پروگرامز کرتے ہیں. لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج 34 سال بعد انہوں نے ہمیں ڈراپ کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نئے گروپ لائے. آپ نے دیکھا اس سرٹیفکیٹ میں اس وقت ہماری فیس 500 روپے تھی. خالی 500 روپے میں ہم 15 آرٹسٹ اس میں رجسٹر ہوئے تھے. مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں انہوں نے کچھ دلال چھوڑے ہیں جو نئے گروپسوں کو پیسے لے کر وہ ان کے ساتھ کچھ آفس کے بھی ملے ہیں، کچھ اس میں آفیسر لیول کے بھی ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر. تو ہمیں یہ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو میرے پیچھے بیٹھے ہیں یہ کوئی ایرے گہرے نتھو خیرے نہیں ہے. آپ نے جو ابھی یہ ٹرافیاں دیکھی، سرٹیفکیٹ دیکھے، ہمارے ایوارڈز دیکھے، تو یہ ایرے گہرے نتھو لوگوں کو نہیں دیے جاتے ہیں. انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن 25 30 سال سے دیا ہے. اس میں سے آدھے ایسے بھی ہیں بیچارے جن کا پورا اسی پر ڈپینڈ ہے. مجھے یہ آپ بتائیے، 34 سال تک ہم ٹھیک تھے، آج 34 سال کے بعد ہمیں کیوں ڈراپ کیا گیا؟ کس وجہ سے؟ ہمارا کیا اس میں کون سا یہ نقص انہوں نے دیکھا؟ مشکل حالاتوں میں بھی آپ نے کام کیا؟ ہمیں مشکل حالاتوں میں ہم نے کیا. جب یہاں پر کوئی باہر بھی نہیں نکل سکتا تھا، اس وقت ہم ملٹنسی تھی، یہاں حالات بہت خراب تھے. اس وقت بھی ہم نے ان جگہوں پر، ان رورل ایریاز میں پروگرامز کیے، بارڈر ایریاز میں، جیسے کیرن سیکٹر ہے، سوگام ہے، لولاب ہے. یہ بہت سارے ایسے بارڈرز ہیں جہاں سے انسان مشکل سے واپس آ سکتا تھا. اس وقت ہم نے آرمی کے اشتراک سے وہاں پروگرامز کیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں منسٹر آف انفارمیشن سے کہ اس وقت ہم ٹھیک تھے، آج 34 سال بعد اگر میں کسی بھی جگہ پر کچھ میری خامی ہے وہ مجھے بتائے. اگر ہم لوگوں نے اس میں کنٹریبیوشن نہیں دیا ہے، ہمارا تو 35 سال کا کنٹریبیوشن ہے، ہم نے پوری جوانی اس میں دے دی. اب آپ یہ بتائیے کہ بوڑھاپے میں ہم لوگ کہاں جائیں جن کا چولہا اسی پر جلتا ہے؟ آج انہوں نے کچھ لوگوں کو، نئے لوگوں کو اس میں ایڈجسٹ کیا ہماری جگہ، ان سے پیسے لیے، کرپٹ ہو گئے. مجھے بتائیے ہم بوڑھاپے میں کہاں جائیں، کس کو دروازہ؟ میں ایل جی ایڈمنسٹریشن، گورنمنٹ آف انڈیا کی ایڈمنسٹریشن سے
रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पर नज़रसानी की जाए। हमारा प्रोटेस्ट इसी बात पर है कि हमसे क्या गलती हुई है। क्या उस वक्त हम ठीक थे जब यहाँ हालात ख़राब थे? क्या उन एरियाज़ में जहाँ तक रेडियो टीवी कुछ नहीं जाता वहाँ हम जाते? इनमें से कोई ग्रुप वहाँ नहीं जाता था, लेकिन हम लोग जाते थे। हमने अपनी जवानी इसमें पूरी 30-35 साल हमने दे दिए। अब आप ये बताइए कि ये लोग फैक बिल्ले बनाते हैं। इन्होंने 2-2 ग्रुप रखे हैं, हर एक ने 2-2 ग्रुप रखे हैं। इनके साथ जो अफसर मिले हैं और उन फैक ग्रुपों पर मेरे पास प्रूफ है उनका, क्योंकि पिछली बार 2018 में मैंने 20 प्रोग्राम मुझे दिए थे, अलॉट किए थे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में। तो मैंने वो 20 प्रोग्राम की उसकी बिल भेजी, उसका प्रूफ भी है मेरे पास। मुझे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वहाँ प्रोग्राम सर्टिफिकेट दे दी, लेकिन वो बिल इन्होंने पता नहीं कहाँ गायब कर दी जब मैंने वो चंडीगढ़ भेजी। और रोजगार कितना मुतासर हुआ? मेरा रोज़गार तो मेरा नहीं, मेरे साथ जितने भी इन लोगों ने इसको ड्रॉप किया गया है इनका सबका मुतासर हुआ है। अभी हम दूसरा स्टेप ये उठाने जा रहे हैं, हम अपने बाल बच्चों को समेत अब सड़कों पर निकल आएंगे, क्योंकि हमारा तो कुछ सहारा रहा ही नहीं। हमारी ज़िंदगी तो इन्होंने, अब देखिए जो नए लोग आए हैं अब इसमें वो लाखों रुपए वो इसमें करें, क्योंकि इनको 50% देना पड़ता है उन अफसरों को। मैं मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से पूछना चाहता हूँ कि हमने इतना कंट्रीब्यूशन दिया, आज हमें 35 साल के बाद क्यों ड्राफ्ट किया गया? अगर हमें कुछ खामी है वो बताइए, उसकी फुटेज निकालिए, देखिए किस जगह हमारी खामी है। तो ये लोग मेरे पीछे हैं, ये भी 25-30 सालों से अपने अपने ग्रुप चला रहे हैं, इनके फैमिलीज भी इस पर मुतासिर है। ये आज जितने हम यहाँ आए हैं इससे ज़्यादा है, कम से कम 20-25 ग्रुपों को इन्होंने जो सीनियर थे। क्या है आपकी डिमांड? हमारी डिमांड ये है कि हमें अकोमोडेट किया जाए। अगर हमें इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि 35 साल के बाद हम कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं, इस बुढ़ापे में हम कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलियाँ इसी पर मुतासिर है। और हम सोशल एक्टिविटी भी है, सोशल वर्क भी कर रहे हैं। ये लोगों तक ये मैसेज इनकी पहुँचा रहे हैं। जो भी वहाँ से स्कीम लॉन्च होती है मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन से, वो हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हमें उस बारे में एक्सपीरियंस है। हम इसमें के लिए ड्रामाज लिखते हैं, खुद स्क्रिप्ट भी लिखते हैं, उसके लिए सॉन्ग्स लिखते हैं। ये जो इन्होंने नए लोग इसमें नए जगह मतलब भर्ती किए हैं, मैं इनसे चैलेंज करता हूँ, अगर ये एक लफ्ज़ लिख सके या इस पर जो वहाँ से स्कीमें लॉन्च होती है। हमने कम से कम, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक स्कीम की थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ भी हमने कम से कम 50 से 100 तक उसमें शो किए, और उसमें हमने खुद स्क्रिप्ट लिखा, उसके सॉन्ग लिखे हमने, और लोगों ने उसे सराहा, लोगों ने उसको पसंद किया कि हाँ, क्योंकि ये वो एक इंसानी हुकूक का मसला था। क्योंकि पहले ज़माने में लड़कियों को दफन किया जाता था, उनको घर में बिठाया जाता, लेकिन इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उससे बदल कर, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे बदल कर हमने वो मैसेज लोगों तक पहुंचाई। हमने उस पर स्क्रिप्ट लिखे, हमने उस पर ड्रामाज किए कि बेटी एक नियामत होती है, बेटी खुदा का देन है, तो उसको पढ़ा लिखा, उसको घर को चूल्हा चक्की में मत रखो। और यह क्या, ये उन्हीं कामों का सिलसिला है। से क्या अपील है आखिर में? मेरी इंफॉर्मेशन से ये अपील है कि जितने ग्रुप आपने ड्रॉप किए हैं इन्हें वापस अकोमोडेट किया जाए, क्योंकि जो आपने जज इसमें रखे थे, इसमें थे जो तला जहांगीर था, वो 30 साल उन्हें रेडियो कश्मीर में, उसको मैं पूछना चाहता हूँ, बशीर भवानी था, उससे मैं पूछना चाहता हूँ कि आप खुद एक आर्टिस्ट हो, खुद इसमें रह चुके हो, आपको क्या नज़र आई जब 35 साल में हमने कोई खामी नहीं थी? आज आपको क्या हमें दिखाई दिया कि जो आपने ड्रॉप कर दिया? ये कहते हैं इन्होंने किया। उसके बाद इनके जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जैसे कि डिप्टी डायरेक्टर वगैरह, तो वो इनके साथ मिले हुए हैं जो नए नए लोग हैं। इसमें हमें पता है इनमें कौन से दलाल है जो नए ग्रुपों से पैसे लेते हैं और पुराने को ड्रॉप करके वहाँ एडजस्ट करते हैं। मैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, LG गवर्नमेंट और ख़ासकर अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हमें अकोमोडेट नहीं है कि हम दूसरा स्टेप, ऐसा स्टेप जाएं कि हम अपने फैमिली के साथ और इसी जगह बैठकर अपनी जान दे देंगे, अपने आप को आग लगा देंगे अगर इन्होंने अकोमोडेट नहीं किया, क्योंकि हमारे पास दूसरा कोई सहारा है नहीं, दूसरा कोई काम है नहीं। अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम सड़कों पर निकलने के लिए मजबूर हो जाएंगे।